Welcome back. And in this session, we're going to talk about redemption of debentures using which source. As you must be aware, we have already discussed a lot of ways in which you can redeem the debentures. But there is one way which we're going to talk about today, and that is out of our savings, which you call it as out of your reserves or profits. Company is in existence for a long time. Company would have saved some amount, and that saving would be used to redeem the debentures. Right? So that's the whole idea we're going to speak on, and we're going to even talk about the questions and probably generalize all the process of redeeming the debentures out of what free reserves. But to understand the whole concept, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिससे आपको पूरा का पूरा क्लैरिटी आ जाएगा और एकदम जबरदस्त क्लैरिटी आपको मिलेगा. राइट? Let's take a small example. Suppose Mitali Jain is like going to get married in next 4 or 5 years, let's say, right? So next 5 साल में suppose मिताली जैन का शादी होने वाला है, right? अब मिताली जैन, आप मुझे बताइए कि शादी में खर्चा कितना होगा? How much expenses or how much expenditure is likely to be incurred in your wedding? How much expenditure is likely to be incurred in your wedding? Yes, Mita. Approximately, just example के लिए आप मुझे बोल सकते हैं, पापा को पूछने का जरूरत नहीं है. She says 10 lakhs. ठीक है. 10 lakhs हो सकता, 20 हो सकता, 30 हो सकता, 40 हो सकता, 1 करोड़ हो सकता, 2 करोड़ भी हो सकता, 10 करोड़ भी हो सकता. ठीक है. अब मिताली ने बोला सर 10 लाख का खर्चा होगा शादी का. Now when 10 lakhs of expenditure is going to happen after 5 years in her wedding, क्या जिस दिन उसकी शादी है उस दिन उसके मम्मी पापा सोचेंगे कि ये 10 लाख कहां से लाना? Yes, मिताली. Is your father or mother going to think, how do I arrange this 10 lakhs which is going to be spent on your wedding? When is your parent going to think about it after 5 years on the day of your wedding? Yeah? No. फिर when are they thinking कि ये जो 10 लाख का खर्चा है जो शादी में होगा, किसी का 20 लाख का भी होता, किसी का 50 लाख का भी होता, नहीं, even if they don't want to do it, they have to do it. ऐसे भी social compulsions रहते हैं, right? So when is your father going to think about this 10 lakhs on the day of your wedding? थोड़ा जल्दी, और इस पूरे एग्जाम्पल को समझ लेंगे अपन तो अपने को पूरा यहाँ पे डिबेंचर का भी समझ में आ जाएगा. जल्दी जल्दी बोलिए कि आपके पापा 10 लाख के बारे में कब सोचेंगे? जिस दिन आपकी शादी है उस दिन? When? Of course, I'm asking Mitali, but others can also answer on her behalf. मिताली का शादी 5 साल के बाद, शी सेइंग कम से कम 10 लाख का तो खर्चा होता. आई थिंक ज्यादा हो जाता, क्योंकि 10 लाख तुम आज के लेवल से बोल रहे हो. यू मस्ट हैव नॉट फैक्टर्ड इन्फ्लेशन. तुम 5 साल के बाद 10 लाख में कुछ भी नहीं आएगा फिर, है ना? तो व्हाट मिताली इज सेइंग इज अभी से थोड़ा थोड़ा सेव करते, राइट? दैट्स राइट. मिताली का जो यहाँ पे आइडिया है, मुरली का भी कुछ यहाँ पे आइडिया है. मिताली सिंह सर एवरी ईयर कुछ ना कुछ सेव करेंगे. That's right. In fact, they are doing it already. You may know, you may not know, but they're doing it. They are already preparing, saving some funds for your marriage, right? अभी से थोड़ा 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 सेव करेंगे. सो सपोज आपके पापा का इनकम है, सपोज आपके पापा का इनकम है, जस्ट आई एम जस्ट कैजुअली सेइंग इट, लेट्स से 10 lakhs एग्जांपल. 10 lakhs ने दोनों सेम फिगर हो गए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. 6 लाख का इनकम है पर एनम.
6 lakhs rupees per annum इनके पापा का जो है इनकम है, राइट? तो व्हाट हिज फादर डज, ओके, इन दिस ईयर वी हैव अर्न 6 lakhs, घर का भी खर्चा होता, एजुकेशन, ट्रैवल, ये वो जितने भी खर्चे होंगे आपके पापा, आप वो मैनेज करेंगे, और आपके पापा क्या करेंगे, आउट ऑफ 6 lakhs ऑफ इनकम विच ही हैज अर्न्ड, 1 lakh, 2 lakh rupees we have to what? Keep it aside. He will keep it aside for your marriage. So 6 लाख में से 5 लाख का कुछ ना कुछ खर्चा भी होगा, या कहीं और कुछ सेविंग करेंगे, दूसरी कोई लड़की है तो उनका भी सेविंग करना पड़ता, मिताली के लिए मे बी ही विल टेक आउट 1 lakh दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर और कुछ पैसा कमाएंगे, 7 lakh, 8 lakh, 6 lakhs. From that, some income, some profit will be what? Kept aside. 1 lakh, 2 lakh, जितना पॉसिबल हो सकता उतना हर साल थोड़ा थोड़ा your father is going to what? Save. I'm not talking about accounts. Accounts को भूल जाओ आप, मैं आपसे एक जनरल डिस्कशन कर रहा कि मैरिज में जब आपके मैरिज होगी तो उसके लिए जो फंड्स है वो कहां से आएंगे? Obviously, what you have said कि every year some savings will be there, right? If this saving is not there and your marriage comes up, क्योंकि हर एक बाप सेविंग नहीं कर सकता ना, उसके भी कुछ लिमिटेशंस रहते, घर पे खाने के लिए भी पैसा नहीं है, सेविंग कहां से करेंगे, वो भी शादी के लिए, वो भी 5 साल के बाद, राइट? सो मेनी पीपल हु डोंट सेव फॉर वन और द अदर रीजन, अगर कोई बाप सेविंग नहीं कर पा रहा और शादी आ गई तो क्या होगा? देन व्हाट? एनी आइडिया? इफ ए फादर इज नॉट एबल टू सेव ऑन द wedding, particularly of his daughter, what happens then? That's right. अगर सेविंग नहीं हुआ तो टेंशन और ज्यादा हो जाएगा, टेंशन इतना हो जाएगा कि घर के डॉक्यूमेंट्स भी किसी के पास रख के, मम्मी का सोना वगैरह रख के, पैसा लेके आपकी शादी में खर्चा करेंगे, है ना? So either he will save or he will borrow at the time of what? किसी और से फिर पैसा लेना पड़ेगा, रिलेटिव से लो, किसी और से लो, कहीं से भी इंतजाम करके, घर गिरवी रख के, कुछ प्रॉपर्टीज को गिरवी रख के, गोल्ड को गिरवी रख के, he will arrange the funds, he will take the loan and spend it for your wedding, right? मैं हमेशा बोलता हूं, यहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रहा हूं मैं, सी मनी इज अर्नड, जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनका मेरे को टेंशन नहीं है, उनका भगवान का दिया हुआ सब है। ऐसा नहीं कि अपने पास भगवान का दिया हुआ कुछ नहीं है, अपने पास भी भगवान का दिया हुआ सब है, बट कहां पे रखा अभी तक मालूम नहीं पड़ा, ठीक है? तो जिनके पास लिमिटेड है फंड्स, अननेसेसरी शादी में पैसा नहीं उड़ाना। This is my humble request. I keep seeing a lot of people around जिनके पास बहुत पैसा, अभी हजार, अभी अब देखो मुकेश अंबानी, कितना पैसा, अब मैं उसको थोड़ी जाके बोलूंगा पैसा नहीं उड़ाना, अननेसेसरी, राइट? कितना स्पेंड किया? आई डोंट नो, आई डोंट इवन रिमेंबर। 500 करोड़ तो खर्चा किया होगा अपने बेटे बेटियों की शादी में, एक शादी में, राइट? लोग अपनी शादियों में सेलिब्रिटी बुलाते, कोई सिंगर बुलाते, यहां के जो लोकल सिंगर्स है, कोई ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, कोई एक्टर को बुला दिया, और ज्यादा हो गया तो शाहरुख खान को बुला दिया, सलमान खान को बुला दिया। मुकेश ने क्या किया? किसको बुलाया? मुकेश ने अपने जो बाउंसे को बुलाया। मुकेश ने अपने किसके बेटी या बेटे के शादी में, वो गाती है, वो बहुत बड़ी, बियॉन्से यूएस की जो सिंगर है, वो बहुत ही मतलब शी इज ए प्रोफेशनल। मुकेश ने बोला मेरे बेटे की शादी है, या बेटे की शादी, बेटे या बेटी किसकी शादी, आई डोंट नो, तो
मेरे बेटी की शादी है, तुम्हें आके गाना है। इधर लोकल किसी को नहीं बुलाया, सलमान खान वगैरह तो ऐसे नीचे बैठ के खाना खा रहे थे। किसको बुलाया? बॉन्से को बुलाया। बियॉन्से बियॉन्से बोले मैं थोड़े आते, ऐसा थोड़े है। मुकेश बोला ये लो ब्लैंक चेक, जो अमाउंट डालना है डाल दो, चुपचाप इधर आके गाना गा लेना। फर्स्ट टाइम कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसमें शी गोज टू अ वेडिंग एंड सिंग्स, राइट। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं आप जो जनरल लोग हैं जिनका बहुत ही मतलब फाइनेंस बहुत ही बजटेड में चलता, उनके लिए मैं बोल रहा हूं अननेसेसरी शादियों में पैसा नहीं उड़ाना। तुम खुद होके मम्मी पापा को बोलना ज्यादा खर्चा नहीं करना है, सेलिब्रेट करो, दिखाओ मत। सेलिब्रेट द वेडिंग, नो डाउट you can invite your close friends, relatives, or even if you're inviting a lot of other people, don't, I have seen stage पे 20 लाख खर्चा कर रहे, स्टेज के ऊपर स्टेज बनाने का 20 लाख रुपए का खर्चा, राइट। तो उनके पास तो ज्यादा है, अपने पास नहीं है। जिनके पास नहीं है, लिमिटेड स्पेंड करिए, सेलिब्रेट करिए, खुद को एंजॉय करिए, खुद पे पैसा स्पेंड करिए। तुम अननेसेसरी लोगों को दिखाओगे, वो आएंगे, खाना खाएंगे, चले जाएंगे, और उसके बाद भी जाके तुम्हारे को गालियां ही देंगे, राइट। और पैसा बहुत मुश्किल से कमाते हैं अपन। आज तुम 10 लाख भी बोलो अगर स्पेंड करोगे, तो तुम अगर तुम्हारा कल जॉब भी लग गया, तुम्हारे को 2-3 साल लगेगा टू सेव 10 lakhs। ऑफ कोर्स यू विल हैव सैलरी वगैरह, बट खर्चा भी तो होता। टू सेव व्हाट यू आर स्पेंडिंग 10 lakhs ऑन 1 or 2 days ऑफ इवेंट, 10 लाख रुपया, वो तो बहुत मिनिमम है। आजकल तो 20, 25, 40, 50 सब उड़ा रहे। तो आप जो 10 लाख उड़ा रहे हो, उसको तुम अगर कल जॉब लग गया तुम्हारा, तो उसको सेव करने के लिए, उतना इकट्ठा करने के लिए तुम्हारे को 3 साल लगेगा। 2 दिन के खेल में 3 साल का मेहनत तुम्हारा जा रहा। सो डोंट डू दैट, particularly for those who cannot afford it, those who don't want to get into all these things, right? चलिए, अब 10 लाख पापा को अरेंज करना है, तो या तो लोन लेना पड़ेगा या सेविंग करना पड़ेगा। रात दिन हर साल मेहनत कर करके, पसीना निकाल के सेविंग कर रहे। क्यों? बेटी की शादी है, बिटिया की शादी है। यहां पे समझ में आया आपने? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। द सेम थिंग हैपेंस हियर इन डिबेंचर्स ऑल्सो। डिबेंचर में क्या होगा? डिबेंचर आपको रीपे करना है 5 साल बाद, 10 लाख रुपए रीपेमेंट करना है आफ्टर 5 years। नाउ after 5 years, all of a sudden you don't have to face a situation, you don't want to face a situation कि डिबेंचर होल्डर्स आए and they're saying 10 lakhs दो। अचानक से भी तुम कहां से 10 लाख निकाल के देते? तो हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग इज ऑलवेज बेटर, जो इसके पापा भी कर रहे हैं, मिताली के। द कंपनी विल कीप सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट्स एवरी ईयर्स प्रॉफिट, थोड़ा बहुत सेविंग करेंगे इन द नेम ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन। अगर कंपनी ने इस साल 6 लाख रुपया कमाया, 6 lakhs इज अर्न्ड दिस ईयर, व्हाट कंपनी विल डू? आउट ऑफ दैट 1 or 2 lakh, जितना पॉसिबल हो सके 1 or 2 lakh rupees, 50,000 rupees, they will take out and keep it aside. Keep it aside for what purpose? For the purpose of redemption of debentures, for the purpose of marriage, है ना? In your, I keep giving this example also, beautiful example. It takes us to our childhood. In our childhood days, अभी तो ठीक है, पेरेंट्स गिव एनीथिंग व्हाट चिल्ड्रन वांट। माय डॉटर इज सेइंग उसको क्या चाहिए, वो हाँ आईपैड चाहिए। उसका उम्र देखो, उसको आईपैड चाहिए, राइट। अब इन दोज डेज, अवर डेज, अवर मतलब आपका मेरा सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। हमारे दिन में क्या होता था? इफ यू वांट टू, सबसे पहले तो हमारे पास जो वी यूज्ड टू राइड साइकिल्स, बाइसाइकिल्स, वो भाड़े पे मिलता था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेकन बाइसाइकिल्स ऑन रेंट? क्या जमाना था, क्या वो मजा आता था उसमें। 1 घंटे का 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, वॉट एवर ईयर यू आर टॉकिंग अबाउट, अकॉर्डिंगली। Yes, Vasavi is saying yes, sir. Still, no, still available, but these days don't.
no one takes the bicycles on rent, right? क्या आज भी कोई लेता है क्या? कुमकुम is saying yes. मिताली is also agreeing कि हाँ सर आपने भी लिया है, ठीक है. तो मिताली ने लिया है, वासवी ने लिया है, कुमकुम बजाज ने भी लिया है. Vasavi, where is these days available? Maybe in some small towns or villages, it might be still that कि साइकिल भाड़े पे मिलता होगा, right? तो you used to take on rent, है ना? Yeah, in your town, because in cities and all खुद का साइकिल रहता, 10-10 हजार का साइकिल रहता, भाड़े पे कहाँ लेते अपन, है ना? तो yes, so those days we used to have rented bicycles. So our objective was at that time as a child, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव था, एक ही जिंदगी में ख्वाहिश था, खुद का क्या हो जाए, खुद का एक क्या हो जाए, साइकिल हो जाए, खुद का एक साइकिल हो, वो अलग ही मजा है. उस टाइम पे अपने को लगता था कि हाँ ये भाड़े का, फिर 1 घंटे का लिए तो हम भी जानबूझ में 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट, जब तक वो 1 घंटा कंप्लीट पूरा नहीं होता वी विल नॉट गिव इट बैक. तो इतना हमारे को अफेक्शन था साइकिल से, और खुद का हो जाए तो और भी बेटर. सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, साइकिल अगर चाहिए खुद का तो क्या, इन दोज डेज अब खुद का साइकिल चाहिए तो बाप को जाके पूछे तो बाप जूता मारता उस टाइम पे, अभी नहीं. तो वी यूज्ड टू हैव अ स्ट्रेटेजी. फाइनेंस उस टाइम पे भी था हमारे खून में, फाइनेंस का जो है वो उस टाइम पे भी अपने था. व्हाट इज इट, वी हैड ए स्ट्रेटेजी. व्हाट इज अवर स्ट्रेटेजी, एवरी टाइम वी अर्न सम मनी वी विल सेव इट, वी विल सेव इट. थोड़ा बहुत चॉकलेट खरीद के खाएंगे वो अलग चीज, बट विल ट्राई टू सेव सम फंड्स फॉर व्हाट, फॉर बाइंग ए न्यू साइकिल. यस, अग्री विद इट. नई साइकिल खरीदने के लिए जो है पैसा जमा करेंगे, विल ट्राई टू सेव सम फंड्स फॉर बाइंग न्यू साइकिल. नाउ व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू एज ए चाइल्ड? आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही था. एज ए चाइल्ड यू ओनली हैड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. पीजीबीपी नहीं है, सैलरीज नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है, खाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. एज ए चाइल्ड आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है? नंबर 1, बहुत सारे सोर्सेस है, आप भी एकदम शातिर हो. एज ए चाइल्ड ऑल्सो योर इनोसेंस हैज ए स्मार्टनेस इन इट. तो हाँ, आई विल कम टू दैट ऑल्सो. वन मेजर सोर्स कुड बी व्हाट, रिलेटिव्स. जितना नफरत आज हम रिलेटिव से करते हैं उतना ही प्यार हम उस टाइम पे उनको करते थे. क्यों? द मोमेंट रिलेटिव्स कम्स वी आर नॉट हैप्पी. जब रिलेटिव आएंगे तब खुशी नहीं होती. खुशी कब होती है? खुशी कब होती है? रिलेटिव आएंगे तब खुशी नहीं होगी. वी गेट द हैप्पीनेस व्हेन रिलेटिव्स लीव. यस, व्हेन दे गो, जब जाएंगे तब मजा आता, और तब आखिरी मजा है. मतलब जो सिचुएशन है, जो ड्रामा होगा वहां पे, राइट, एक अलग ही गजब मजा है ना? तुम्हारे को पांव छूना हो, टचिंग द फीट ऑफ द गेस्ट, द रिलेटिव्स, वेदर यू वांट और नॉट, यू विल डू इट. आज करते नहीं करते मालूम नहीं, उस टाइम पे कंफर्म करते थे. एंड द मोमेंट यू टच द फीट ऑफ योर रिलेटिव्स, इमीडिएटली रिलेटिव जिसका तुम्हें इंतजार था, राइट, जैसे तुम उसका पांव छुओगे वो आशीर्वाद देके तुम्हारे को ऐसा जेब से क्या निकालता था, पैसे, राइट. सो द मनी विच ही यूज्ड टू टेक आउट, लेट्स से एग्जांपल 1000 रुपया, 1000 रुपीज टू गिव इट टू यू. अब यहां पे पूरा ड्रामा स्टार्ट होता तुम्हारा. क्या ड्रामा? जल्दी बोलो, ड्रामा क्या है वहां पे? सिंपल चीज क्या होती, जिंदगी में कभी कुछ सिंपल होता नहीं. सिंपल क्या हो सकता था? वो 1000 लेके दिए, तुम 1000 जेब में रख दिए. ऐसा सिंपल थोड़ी होता जिंदगी. ड्रामा क्या है? तुम 1000 दे रहे हो और यहां पे आया एंट्री किसका? विलन का.
या तो तुम्हारे मम्मी या पापा, मोस्टली मम्मी होगी, राइट? नहीं नहीं नहीं, इसका क्या जरूरत है? एंड तुम अंदर सोच रहे, मम्मी तुम्हारे को क्या करना, तुम चुपचाप बैठो ना उधर, जरूरत है इसका। बट मम्मी आके बोलेगी इसका क्या जरूरत है, नहीं इतना थोड़ी लेते, ये वो सब पूरा नेगोशिएशन चलता, नहीं नहीं देना तो पड़ता, मैं आपको थोड़ी दे रहा, बच्चे के हाथ में दे रहा, वो भी एक स्टैंडर्ड डायलॉग है उनका, राइट? तो पूरा जो आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स पूरा होने के बाद मामला सेटल होता है। आपको भी मालूम है मामला कैसे सेटल होता, कैसे होता है मामला सेटल? मामला सेटल होगा 500 रुपीज का, डील क्लोज हुआ, ना तुम्हारा ना मेरा, 500 रुपया करे, तो 1000 के बदले 500 आ गया, चलो 500 आया, कुछ तो आया। अब वो तुम 500 का क्या करोगे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस 500? यू आर गोइंग टू व्हाट? जल्दी बोलिए। अब तुम्हारे पास 500 आ गया, क्या करोगे? We will save it. We will save it. Correct. शिल्पा is saying, मुरली is saying, खुशी is also saying, पिगी बैंक में डालेंगे। सही बात है, बट हम उस टाइम पे इतना सोफिस्टिकेटेड बातें नहीं करते थे, इतना हमारा अंग्रेजी स्ट्रांग नहीं था, हम तो बोलते थे हुंडी में डाल देंगे। आजकल के बच्चे पिगी बैंक ज्यादा बोलते, हम बोलते थे हुंडी, हुंडी, राइट? मिट्टी का रहता, स्टील का रहता, प्लास्टिक का रहता, हुंडी रहता, उसमें डाल दो, राइट? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये, फटाफट से आप इसका जवाब दीजिए। ये सब जितना भी मैं बोल रहा हूं, आप अगर समझ गए तो समझो डिबेंचर्स का आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट तुम्हारे को आ गया, राइट? व्हाई आर यू पुटिंग द मनी इन पिगी बैंक? कीप इट इन द ड्रॉ इटसेल्फ। आपका अलमारी रहेगा, आपका कुछ ड्रॉ रहेगा, आपका बैग रहेगा, उसमें डाल दो। वाई पिगी बैंक? डालना है ना आपको, तो आप अपने बैग में डाल दो, अलमारी में डाल दो। One reason which Murli is saying, you will put it in piggy bank. You will put it in piggy bank, that's right. You will put it in piggy bank for the reason that you should not use it. तुम ड्रॉ में भी रख सकते हो, उसमें क्या है, पर ड्रॉ में रखने का तुम आइडिया कैंसिल कर चुके हो। क्यों? If you keep it in draw, there is all possibility that you will use it. You will be tempted to use it for some purpose. कभी कुछ चॉकलेट खाने का मन हुआ, कभी कुछ खरीदने का मन हुआ, आप वो 500 में से 1000, 100, 200, 50 रुपया निकालते निकालते फाइनली देखे तो जीरो ही बचेगा उधर, तो आप आइडिया लगाते कि हम पिगी बैंक में डालेंगे, है ना? यस और नो? कुछ लोग तो इतने कमीने रहते हैं, पिगी बैंक में डालने के बाद भी उनको शांति नहीं है। आफ्टर 2-3 डेज, अरे ये पिगी बैंक में क्यों डाला मैंने? फिर दे विल ट्राई ऑल द स्ट्रेटेजी टू टेक द मनी आउट ऑफ पिगी बैंक। जो पिगी बैंक में डाला है, हुंडी में डाला है, वो डालने के बाद भी कुछ लोग उसका निकालने का बहुत ट्राई करते, बाद में 2 दिन 3 दिन के बाद दे रियलाइज एंड दे ट्राई टू रिमूव द मनी फ्रॉम पिगी बैंक। स्केल यूज करके, ये यूज करके, दुनिया का दिमाग लगाते, है ना? अब पिगी बैंक में डालने के बाद भी तुम्हारे को देखो शांति नहीं है। हैड यू केप्ट इट समवेयर एल्स, डेफिनेटली यू वुड हैव यूज्ड इट, एंड दैट इज वी हैव अ पिगी बैंक सो दैट वी कैन स्टोर देयर without using the funds for some other purpose except for buying what? Cycle. इस तरह से धीरे धीरे आप जमा करते, बहुत सारे सोर्सेस है आपके पास। एक किसी ने बोला सर न्यूज़पेपर बेच के जो पैसा आता वो भी रख लेते थे हम, राइट? और मैं तो क्या करता था, अब मेरे को 20 रुपया दिया, दूध लेके आने के लिए बोला, दूध पहले बहुत लाता था मैं, आज भी, हाँ आज भी लाता हूं, पहले भी लाता था। 20 रुपया दिया मेरे को दूध लाने के लिए, 18 रुपीज का दूध है, एग्जाम्पल 18 रुपीज का दूध है, दूध लाके दे दिया, 2 रुपया अपने जेब में।
करेक्ट। तो 20 रुपए में से 2 रुपए अपना कमीशन हो गया, राइट? इस तरह से वी विल सेव 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 सेव, एंड फाइनली व्हेन वी फील इट्स फुल, और व्हेन वी फील वी हैव सफिशिएंट फंड्स, वी break the hundi and use the funds to buy the cycle. ठीक है, right? That is exactly what we are going to do even in debentures. अब हम डिबेंचर्स में क्या करेंगे? हमें मालूम है हमारे को साइकिल नहीं खरीदना, डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है, तो वी नीड लॉट ऑफ फंड्स, 10 लाख रुपीस एग्जाम्पल। अब आप क्या करेंगे? एवरी ईयर वॉट एवर अर्निंग्स आर देयर, वॉट एवर इनकम यू अर्न, सम ऑफ दैट मनी you will put it into a hundi. आप हुंडी में डालेंगे, परफेक्टली राइट। मुरली इज ऑल्सो सेइंग, सर मैं भी आपके जैसे करता था, कुछ घर पे लाने के लिए बोला, प्रोविजनल आइटम्स ये वो, तो उसमें डेफिनेटली मेरा भी कमीशन रखता था मैं इसमें, राइट? यस। तो व्हेन यू आर रिडीमिंग द डिबेंचर्स, every year whatever profit is there, the profit earned by the company, what company will do is some of that profit they will take it out and put it into a hundi. Yes, यहां पे भी हुंडी है, बड़े लोगों का भी हुंडी रहता, हाँ, तो थोड़ा प्रॉफिट निकाल के हुंडी में डाल देते। कौन? कंपनी। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, एंड दैट हुंडी इज कॉल्ड एज DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। नाम पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ऐसा कैजुअली मत बोलो, कॉन्शियसली एवरी वर्ड को थोड़ा समझ लीजिए। यहां पे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, टू रिडीम द डिबेंचर्स वी आर क्रिएटिंग दिस रिजर्वायर, वी आर क्रिएटिंग दिस हुंडी। सो एवरी ईयर सम प्रॉफिट विल बी टेकन आउट फ्रॉम वेयर? P&L, बिकॉज एवरी ईयर जो भी कमाते वो P&L में रहता, P&L में से आप निकालोगे और DRR के हुंडी में डालोगे। हर साल आप ये काम करोगे। एवरी ईयर यू आर गोइंग टू डू दिस। गॉट इट? वेरी गुड। अब एक और आइडिया यहां पे, एक और चीज। अब जैसे मिताली है, मिताली आपके पापा सेविंग कर रहे होंगे आपकी शादी के लिए, आपको क्या लगता? शी इज सेइंग यस सर, ऑलरेडी कर रहे हैं। Already her father is saving some income, some savings her father is making every year, है ना मिताली? Yes or no? Yes. अभी तक 4 लाख का सेविंग हो गया एग्जाम्पल, अभी तक so far her father has saved 4 lakh rupees. Where is that 4 lakhs? सेविंग हो गया, अच्छी बात है, पैसा कमाया, अच्छी बात है, सेविंग हुआ, कहां पे है ये 4 lakhs? Yes मिताली, where do you think it is that 4 lakhs is? Is it in hundi? क्या आपके पापा भी एक हुंडी है? मिताली मैरिज हुंडी, मिताली मैरिज हुंडी, MMH, MDH नहीं, MMH। MMH जो है वो हुंडी है, उसमें पैसा जमा करते, जो भी आया 1 लाख रुपए इस बार मिताली की शादी के हुंडी में डाल दिया। कर सकते हैं ऐसा, नो प्रॉब्लम इन इट, वाई नॉट दिस, बट 1 minute, एवरी ईयर सम प्रॉफिट कैन बी पुट एंड केप्ट असाइड, एंड एक हुंडी भी बना सकते हैं आप, जैसे आप बचपन में बनाते थे वैसा यू कैन, योर फादर कैन ऑल्सो मेक ए पिगी बैंक एंड सेव इट। बट द प्रॉब्लम हियर इज इफ ही डज दैट, 1 year, फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकेंड ईयर अनदर 1 लाख, थर्ड ईयर 1 लाख, हर साल जो सेविंग करेंगे और सेव करेंगे पिगी बैंक में, प्रॉब्लम यह है कि वो पिगी बैंक में जो आप पैसा सेव करोगे, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू सम रिटर्न्स। The funds will be lying idle, ऐसे ही पड़ा है। और आप ठहरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट, आपको मालूम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आपको मालूम है पैसे का कीमत चेंज होते रहता, आपके पापा को भी मालूम है।
तो आपके पापा बोले हम ऐसा ही 1-1 लाख सेव करके अपने अलमारी में क्यों रखें? एक काम करते, सेव करेंगे और उसके बाद हम उसको कहां पे सेविंग करेंगे, करके ऐसे ही नहीं रखेंगे. वी विल टेक दैट 1 लाख, go to bank and make an FD, or go to mutual fund and buy some mutual funds, or go to a jewelry store and buy gold biscuits, right? Understood this? तो आप सेविंग करेंगे और सेविंग को इन्वेस्ट भी करेंगे. यस सर. सो सपोज इसके पापा ने जो है every year save kiya, and that money is invested where in FD, example. Now when her father invests the money in FD, what happens? That FD will give returns. Suppose uske papa ne 4 lakh FD mein dala and the rate of interest is 10%. Example ke taur pe round figure 10% का interest है. 4 lakh रुपए her father has invested in fixed deposit, which is going to yield 10% return, which means in the next year इसके पापा को कितना मिलेगा? बैंक वाला देगा एक्स्ट्रा कितना? 40,000 rupees. 4 lakh into 10%, which means जो पैसा तुम ऐसे, if you keep it in almari, it will be wasted. You invested in fixed deposit, example 4 lakhs invested in fixed deposit at 10% interest, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 40,000 rupees का इंटरेस्ट. हाँ या ना? Yes. Now मिताली and others also, ये जो 40,000 का इंटरेस्ट मिलेगा आपके पापा को, वो आपके पापा क्या करेंगे? What will your father do with that 40,000? एक हॉलीडे ट्रिप मारेंगे, खुद के लिए कपड़े खरीदेंगे, क्या करें? Perfectly right. That's exactly we are going to do here also. जो 40,000 रुपए, 40,000 rupees interest which is earned, your father is going to reinvest for your same purpose, for the same purpose, for your marriage. ऐसा नहीं है जो 40,000 तुम्हारे पापा ने जो कमाया है आपके जो शादी के फंड्स के ऊपर, it's not that this money is going to be this money is going to be spent by your father on himself or some other people. जैसे ही वो 40,000 आया, वो भी वापस सेविंग्स, वो भी सेविंग्स, वो भी हुंडी में डाल देंगे, उसको भी वापस री इन्वेस्ट कर सकते. राइट? दिस कीप्स हैपनिंग बाय द एंड ऑफ 5, 6, 7 years, जब तक आपकी शादी का उम्र हो जाता या जब तक रिडम्पशन का टाइम आ जाता, कंपनी के पास, पापा के पास पैसा रहेगा. लाइफ विल बी लिटिल सिंपल. इवन इफ यू डोंट डू दिस, इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी, आप कर सकते, जो करना कर सकते, बट प्रूडेंस है, कंजर्वेटिव है कि हर साल थोड़ा बहुत सेविंग कर लो और उसको उसी पर्पस के लिए स्टोर करो. देन डोंट यूज इट फॉर सम अदर पर्पस. अब आपकी शादी के लिए अगर पैसा सेव किया है, आफ्टर 2-3 years कार चाहिए, आपके घर में कार चाहिए, क्या वो पैसा यूज करेंगे कार खरीदने के लिए? डेफिनेटली नॉट. वेरी वेरी क्लियर कि ये पैसा तो मिताली बिटिया की शादी के लिए है. राइट? एग्जैक्टली. यहां पे भी यही होगा. आप जब कंपनी जब जो है प्रॉफिट में से थोड़ा सेव करके हुंडी में डालेंगे, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, उस पैसे से इंटरेस्ट भी आएगा, वो भी हुंडी में ही डालेंगे, और जो भी पैसा आपने सेव किया है उसको आप दूसरे कोई भी पर्पस के लिए, कंपनी विल नॉट यूज इट फॉर एनी अदर पर्पस. दैट्स द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. Objective of this is to ensure that this money is not used for any other purpose. Otherwise, आप जो पैसा कमा रहे हैं, जो P&L में है, you could have let that profit remain in P&L itself. But P&L से निकाल के आपने DRR में डाला, एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में डाला. क्यों? For the whole reason that you don't have to
use this money for some other purpose. Nothing you're doing. आप खाली आपका जो P&L में पैसा है वो P&L में से आपने शिफ्ट कर दिया किधर? DRR, so that it is not used for any other purpose, so that it is not distributed to the shareholders as dividend. Otherwise, if you don't do that, if you don't keep it for reserve, DRR reserve, ये जो P&L में प्रॉफिट है, it may be that you will distribute it to your all shareholders, right? तो इस पर्पस के लिए ये फंडा है अपना redemption of debenture out of our profits, right? Now, please tell me, 5th year when her father earns, let's say 8 lakh rupees, 5th year में, the 5th year's income, क्या मिताली आपके पापा 5th year income में से भी सेविंग करेंगे? फर्स्ट ईयर में करेंगे, सेकेंड ईयर में भी करेंगे, थर्ड ईयर में भी करेंगे, फोर्थ ईयर में भी करेंगे. 5th ईयर आपके पापा ने 8 लाख रुपीस कमाया. योर फादर अर्नड 8 लाख रुपीस इन द 5th ईयर. इज ही गोइंग टू सेव सम अमाउंट आउट ऑफ दैट? इज अ क्वेश्चन. आंसर इज यस, परफेक्टली राइट. ऑब्वियसली 5th ईयर में जो है, जब शादी होगी तब भी उनके पैसे जो इनकम है, whatever salary or business जो भी profit है, उसमें से he is going to save some amount. Another question, in the 5th year, is your father going to, suppose your father has saved 2 lakhs in the out of 5th year's income, जो 5th year 8 lakhs का income था आपके पापा का, उसमें से 2 लाख सेव किया. Please tell me, is your father going to invest this 2 lakhs into fixed deposit in the 5th year ending? 5th ईयर का जो आपका प्रॉफिट है 8 lakhs, उसमें से 2 लाख सेव करेंगे और क्या उस 2 lakhs को एफडी में डालेंगे? यस प्लीज. इज ही गोइंग टू इन्वेस्ट दैट 2 lakhs? जल्दी बोल. मिताली सिंह यस. शिल्पा इज ऑल्सो सेइंग यस. एंड द आंसर इज नो. आंसर इज नो. 5th ईयर में आपके पापा ने 8 lakhs कमाया. 5th ईयर की बात कर रहा हूं. उसमें से 2 lakhs निकाले. ऑफ कोर्स सेविंग होगा. इज योर फादर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस इन फिक्स्ड डिपॉजिट? आंसर इज नो. यहां पे शहनाई बज रही है, बारात आ गई है, और तुम्हारे पापा 2 लाख जो सेव किए वो जाके एफडी में डालेंगे, जिसका रिडम्पशन होगा 2-3 साल के बाद? नो. 5th ईयर में सेविंग होगा, बट वो सेविंग का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. इनफैक्ट all these years whatever you have invested, you will liquidate that, you will sell that, you will liquidate and get the money. अगर किसी के भी पापा 5th ईयर जब शादी है उस टाइम भी अपना सेविंग एफडी में डाल रहे, तो अपने पापा को फिर अपन समझाना पड़ता, पापा कल मेरा शादी है, आज आप ये 2 लाख रुपया इस साल का सेविंग भी अगर एफडी में डाल दोगे तो कल क्या स्पेंड करोगे आप? इनफैक्ट लास्ट 4 साल जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है आपने, उसको ब्रेक कर दो. ब्रेक द एफडी, लिक्विडेट इट, और वो पैसा भी घर पे लेके आओ, कल शादी है. आया समझ में अपने? आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस. 5th ईयर सेविंग होगा पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. इनफैक्ट 5th ईयर में इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा. इन्वेस्टमेंट वुड बी सोल्ड, लिक्विडेटेड टू गेट द मनी विच विल बी यूज्ड फॉर व्हाट? रिडम्पशन, विच विल बी यूज्ड फॉर मैरिज पर्पस. आया समझ में अपने? So this all you have to exactly implement in redemption. I hope all the clues are there. आपको सारा समझ में आ गया. कंपनी क्या करेगी? प्रॉफिट में से सेविंग करेगी, साइड में रखेगी, डीआरआर हुंडी में डाल देगी, और फिर वो जो पैसा हुंडी में डाला, दैट विल बी इन्वेस्टेड ऑल्सो. Every year some income will be earned. That income also which we receive will be put into what? Hundi. This keeps on happening every year. On the last year, in the last year, whatever profit is earned in the last year, out of that also savings will be there. Out of that also 2 lakh, 3 lakhs will be put into marriage hundi.
but that money will not be invested. That will be only kept aside to be redeemed, to be used for marriage. एंड इन द लास्ट ईयर जब शादी है, रिडम्पशन है, जितना अभी तक आपने इन्वेस्ट किया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करेंगे, बेचेंगे और पैसा मिलेगा. विद ऑल दैट फंड्स, विद ऑल दैट मनी, वी आर गोइंग टू हैव अ रिडम्पशन और मैरिज. आया समझ में अपने? कोई डाउट्स?